Hello friends, welcome to Renu's Englishpedia. My name is Mrs. Renu Bansal and I am a PGT. I have been teaching 10th, 11th, 12th for around 17 years and today we are going to do the competency based questions of the poem Fire and Ice written by Robert Frost. So before we start with the competency based questions, let's have a quick look at the poem. Fire and Ice is written by Robert Frost and it has the theme, that human emotions like lust, desire, hatred, intolerance, etc. They can be destructive, they can cause the end of the world, right? Uh, बोलते हैं इस पोएम का अगर हम जिस देखें तो अकॉर्डिंग टू द पोएट if the world is to end, then the first probability for it to end is he believes that fire will be the end of the earth. And if the earth is to end twice, अगर ऐसा हुआ कि दो बार earth का नाश होगा, then the second time it will be due to ice. The first time will be due to fire and the second time will be due to ice. अब फायर एंड आइस यहाँ पे सिंबल्स भी हैं. फायर मीन्स ओवर हियर अगर लिटरल मीनिंग हम देखें तो फायर का मतलब है ग्लोबल वार्मिंग, वॉल्केनोस, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो दैट इज ऑल फायर. If we look at the figurative meaning of fire, then it is it is all fiery emotions, hot emotions like anger, desires में मतलब हम इतने आगे बढ़ जाते हैं कि ये सारे हॉट इमोशंस को, हेट्रेड को, वेंजेंस को, ये सारी चीज़ों को, रिवेंज, इन सारी चीज़ों को वो हमारी ये फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स इतनी बढ़ जाएंगी दैट इट विल कॉज द एंड ऑफ द अर्थ. एंड आइस का लिटरल मीनिंग है अगेन द कूलिंग ऑफ द टेम्परेचर. आपको पता होगा ग्लोबल वार्मिंग के कारण कि जो पार्ट्स में बहुत ठंड पड़ती थी वहाँ पे इस साल उतनी ठंड नहीं पड़ी है, और जहाँ पे ठंड नहीं पड़ती थी वहाँ पे हद से ज़्यादा ठंड पड़ी है. इवन द रेनी सीजन हैज़ चेंज. जहाँ पे बारिश बहुत होती थी उन जगहों पे बारिश कम हुई है, और जहाँ पे बहुत कम होती थी वहाँ बारिश बहुत हो रही है. तो ऑल दिस इज़ ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. तो आइस में भी यही होगा कि टेम्परेचर इतना लो हो जाएगा दैट पीपल विल फ्रीज टू डेथ. अगर हम इसका फिगरेटिव मीनिंग देखें आइस का, then ice means all the cold emotions like it represents uh, jealousies, it represents जो हमारा एनवे होता है, हम जो हमारी हेट्रेड की भावना होती है, ये सब आइस फीलिंग्स होती हैं. कोल्डनेस, क्रूअल्टी, दीज आर ऑल कोल्ड इमोशंस जो इक्वली हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. हाँ, सिर्फ हमारे लिए नहीं बट दूसरों के लिए भी ये हार्मफुल होते हैं. So, and the rhyme scheme of the poem, it has the rhyme scheme ABA, ABC, and BC, B. If we talk about the literary devices, then there is alliteration in the phrases some say and favor fire, the first sound and the sir sound. Please remember the sounds when they are repeated, it is alliteration. So then there is symbolism. मैंने आपको बता दिया है fire and ice का meaning क्या है. Fire represents desire and ice represents hatred. Then there is anaphora also. Anaphora का मतलब होता है when words are repeated at the beginning of consecutive sentences. जब एक के बाद दूसरा sentence आता है और उसमें beginning words same होते हैं तब उसको anaphora बोला जाता है. इस poem में जो beginning words हैं some say, right? तो यहाँ पे ये दो lines में anaphora used है. Okay, we'll start with the competency questions. The first question is, what does the speaker's alignment with those who favor I suggest? स्पीकर का अलाइनमेंट मतलब उनका वो किस चीज़ के लिए, मतलब स्पीकर किस चीज़ में बिलीव कर रहा है. जब लोग कहते हैं, जो लोग आइस को फेवर करते हैं, आइस को फेवर करना मतलब बिलीव करना कि आइस विल बी द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ. तो पोएट, जो स्पीकर है, जो पोएट है, उसका अलाइनमेंट इन लोगों के साथ क्या बताता है. वो बोलता है कि आइस का भी एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स होता है.
जो बंदे आईसी होते हैं उनमें लैक ऑफ एम्पैथी होता है, वो दूसरों की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, उनका इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पाता है, and that is why he is aligning with those who say that the world will end in ice because जिन लोगों के अंदर कोल्ड फीलिंग्स होती हैं, जो क्रूअल होते हैं, they can also cause death and destruction. The next question is comment on the poet's use of language in these lines. तो यहाँ पर जो पोएट ने लैंग्वेज यूज़ की है इस पोएम में, इट इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. जो वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं वो बड़े आसान हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, और जो पोएम लिखी गई है वो एक कन्वर्जेशनल टोन में लिखी गई है. कन्वर्जेशनल टोन का मतलब होता है बातचीत करने का तरीका. द पोएट इज़ डायरेक्टली टॉकिंग टू अस. वो अपने दिल की बात जो है वो हमें डायरेक्टली बता रहा है. ऑल्दो ये पोएम सिंपल अपीयर होती है, बट इट इज़ कैरिंग अ प्रोफाउंड मैसेज. कैरिंग अ प्रोफाउंड मैसेज का मतलब है कि इसमें एक बहुत गहरा मैसेज, एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है, दैट इज़ बोथ फायर एंड आइस हैव ग्रेट डिस्ट्रक्टिव पावर्स. और दोनों ही दे विल इनएविटेबली लीड टू डिस्ट्रक्शन. उनका डिस्ट्रॉय करने की पावर बोथ है, और दोनों इतना ज़्यादा कॉमन हो गए हैं कि पॉसिबल है कि दे विल इवेंचुअली लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ. जब इस प्रोफाउंड मैसेज के साथ ये सिंपल लैंग्वेज यूज़ की जाती है, तो जो मैसेज है, जो पोएट कहना चाहता है, वो लोगों को आसानी से समझ आता है. इट इज़ एक्सेसिबल टू अ वाइडर ऑडियंस. एक बंदा जो लिटरेचर में ज़्यादा इंटरेस्ट ना रखता हो, जिसको बहुत ज़्यादा फ़िलोसॉफ़िकल बातें ना समझ में आती हों, उसको भी ये बात क्लियर हो जाएगी विद द सिंपल लैंग्वेज दैट द पोएट हैज़ यूज्ड, दैट द वर्ल्ड विल एंड ड्यू टू नेगेटिव इमोशंस इन अ ह्यूमन बीइंग. और इसीलिए ये पूरे पोएम के ओवरऑल मूड को इम्पैक्ट करता है, पोएम को इतना पावरफुल बना देता है. Next question, explain why the poet personally holds the conviction that the world will primarily end in fire. इसका मतलब है पोएट, पहले क्वेश्चन में हम कह रहे हैं कि लोगों को वो बोल रहा है कि हाँ वो उनके साथ एग्रीमेंट में है कि वर्ल्ड में एंड इन आइस, बट पर्सनली पोएट क्या कन्विक्शन, क्या बिलीफ होल्ड करता है, उसके हिसाब से अगर पहली बार अर्थ खत्म होगा, देन इट विल बी ड्यू टू द हॉट इमोशंस दैट इज फायर. अब प्रोबेबल है, पॉसिबल है कि वो खुद एक विक्टिम था ऑफ द फायरी एस्पेक्ट ऑफ डिज़ायर. आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज अ ब्रिटिश, बट उनको एक्लेम जो मिला वो अमेरिका में मिला. ब्रिटिश पॉपुलेशन ने उनके पोएम्स को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया. तो मे बी ही सेज वो बिलीव करता था दैट ही वाज आल्सो विक्टिम ऑफ द फायरी एस्पेक्ट ऑफ डिज़ायर. वो ये बात एडमिट भी करते हैं पोएम में, व्हेन ही सेज इन द लाइन, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई एग्री विद दोज हु फेवर फायर. तो ये लाइंस में हमें समझ में आता है कि ही इज़ अ विक्टिम ऑफ द फायरी डिज़ायर. उसने इस बात को एडमिट किया है, एक्सपीरियंस किया है, और बिलीव करता है कि फायर के जो डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं, एंड दे विल बी द मेन कॉज of the destruction of the earth. Next question is, Fire and Ice was first published in 1920. 1920 was the period of the First World War. अब ये दो चीज़ों को कोरिलेट करके हमारा क्वेश्चन बन रहा है, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ वर्ल्ड वॉर वन माइट हैव इन्फ्लुएंस्ड द थीम ऑफ द पोएम. आपको पता होगा 1914 से लेकर 1919 तक हमारा वर्ल्ड वॉर वन चला था. तो वो बोल रहे हैं कि ये पोएम 1920 में पब्लिश हुई थी. तो क्या पोएट ने वर्ल्ड वॉर वन के साथ कनेक्ट होके, इन्फ्लुएंस होके ये पोएम लिखा? तो येस, इट इज़ सर्टनली पॉसिबल दैट द वर्ल्ड वॉर वन इन्फ्लुएंस द थीम ऑफ द पोएम फायर एंड आइस. वर्ल्ड वॉर वन जो था, इट वॉज अ टाइम ऑफ ग्रेट डिस्ट्रक्शन. बहुत ज़्यादा हर जगह तबाही मची थी, बहुत डिवास्टेशन हुआ था, बहुत लोग मर गए थे, बहुत जगहें डिस्ट्रॉय हो गई थी. तो मे बी ये डिस्ट्रक्शन कुड हैव लेड फ्रॉस्ट टू कॉन्टेम्पलेट, टू थिंक, टू पॉन्डर अबाउट द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी.
इंसान के अंदर डिस्ट्रॉय करने की कितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है। इस पोएम में फ्रॉस्ट डिस्कस करते हैं कि वर्ल्ड का एंड कैसे होगा। उनके हिसाब से द वर्ल्ड में एंड बिकॉज ऑफ टू सिनेरियोज, आइदर थ्रू फायर और थ्रू आइस। फायर का मतलब होता है ऑल हॉट इमोशंस, आइस का मतलब होता है ऑल cold emotions, and both of them are enough to destroy the earth completely, to cause a great chaos. एंड इसीलिए फ्रॉस्ट जो हैं वो इस सिम्बल्स को यूज़ कर रहे हैं टू शो द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी विच वर अनलीश ड्यूरिंग द वॉर। वॉर के टाइम पे इंसान ने अपनी सारी जो बुरी बातें होती हैं, अपने अंदर के नेगेटिव इमोशंस होते हैं, उनको फुल फोर्स से बाहर निकाल के लोगों को मारा है, लोगों को डिस्ट्रॉय किया है। So that could probably have been the reason why the poem was influenced by World War One. The next question is a creative question. It is asking you to create a tagline, a slogan or a catchphrase for the poem. Tagline, slogan या catchphrase का मतलब होता है कोई ऐसा लाइन बनाओ जिससे लोग सुनते ही पोएम की तरफ आकर्षित हो जाएं। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं which I have come up with. First is two paths to destruction which will win in the end, or love and hate, fire and ice, a timeless struggle for the fate of humanity. You can come up with your own catchy phrase or tagline, and you can answer this question. Next question is, the tone of the speaker contrasts with the seriousness of the subject matter. इस लाइन को हमें जस्टिफाई करना है। टोन ऑफ द स्पीकर क्या है? हमने देखा था इन द फर्स्ट इनिशियल क्वेश्चंस कि उसका बड़ा सिंपल सा टोन है, बड़ा कन्वर्सेशनल टोन है। बट यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर कैसा है? इट्स अ प्रोफाउंड, इट्स अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट मैटर। तो क्या इस सब्जेक्ट मैटर के साथ ये टोन कंट्रास्ट कर रहा है? कर रहा है तो क्यों कर रहा है? इज इट जस्टिफाइड? So yes, it is true that the tone is contrasting with the seriousness of the subject matter. Subject matter जो है that is the end of the world, और ये जो टॉपिक है, अगर हम एंड ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो इस टॉपिक से हमारे दिल के अंदर बहुत फियर्स आते हैं, ड्रेड आता है, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आता है कि क्या होगा, कैसे होगा, दुनिया ख़त्म होगी तो हम क्या करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये हर दिल में एक टिपिकल फियर राइज होता है। बट जो पोएट का टोन है वो कैसा है? वो बड़ा काम है, बड़ा डिटैच्ड है, बड़ा कन्वर्सेशनल है। वो सिंपली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन है वो कैसे कॉज होगा। उन्होंने उस पर कोई इमोशन नहीं बताया है, दैट इज ही फीलिंग सैड और इज ही फीलिंग एंग्री और वट एवर। ही इज जस्ट टॉकिंग इन अ वेरी सिंपल मैनर कि these are the reasons which will be the end of the world. So yes, the tone of the speaker and the seriousness of the subject matter is being contrasted. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फायर एंड आइस प्रोजेक्ट अ पेसिमिस्टिक आउटलुक कमेंट। पेसिमिस्टिक आउटलुक का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को नेगेटिवली देखते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल होता है, किसी को बॉटल दिखाई जाए जिसमें पानी है, कोई बोलेगा कि बॉटल इज हाफ फुल, कोई बोलेगा बॉटल इज हाफ एम्प्टी। जो बोलेगा हाफ एम्प्टी है, ही इज लुकिंग एट द अनफेवरेबल साइड, सो ही हैज़ अ पेसिमिस्टिक आउटलुक। और जो बोलेगा बॉटल हाफ फुल है, ही हैज़ एन ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, राइट? सॉरी, यस, ही हैज़ अ फेवरेबल आउटलुक, तो उसको हम बोलेंगे ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है उस बच्चे का। तो राइट हियर हम बोल रहे हैं फायर एंड आइस प्रोजेक्ट अ पेसिमिस्टिक आउटलुक, दैट इज एन अनफेवरेबल आउटलुक। इस बात पे हमें कमेंट करना है। तो अब पोएम में क्या है? पोएम हमारे को ये आइडिया दे रहा है दैट द वर्ल्ड विल एंड इन टू वेज, आइदर इट विल एंड विथ फायर और इट विल एंड थ्रू आइस। अब ये जो फायर एंड आइस है, इनको जनरली हम एसोसिएट करते हैं विद डिस्ट्रक्शन एंड केओस। ये सजेस्ट करते हैं कि जो एंड ऑफ द वर्ल्ड होगा वो बड़ा वायलेंट, बड़ा कैटेक्लिस्मिक इवेंट होगा। और पोएट का जो टोन है, जो पोएम का टोन है, वो ब्लीक है, वो डिटैच्ड है। ब्लीक है मतलब देयर इज नो होप दैट द वर्ल्ड विल सर्वाइव, देयर इज अटमोस्ट कन्विक्शन कि वर्ल्ड तो एंड होगा ही होगा,
दैट इज वाई वी कॉल इट ब्लीक. ब्लीक इज विदाउट होप. एंड डिटैच्ड मतलब उसने अपने इमोशंस उसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, वेदर ही इज हैप्पी और एंग्री दैट द वर्ल्ड विल एंड. वो सिर्फ हमें बता रहा है कि वर्ल्ड एंड होगा, 100% एंड होगा, आइदर थ्रू फायर और थ्रू आइस. एंड ये जो उसका ब्लीकनेस ऑफ द टोन है, जो डिटैच्ड वे में वो बात कर रहा है, it is adding to the overall sense of pessimism. Poem is not optimistic, the poem is a very pessimistic poem. Speaker जो है वो ऐसे लगता है as if he has resigned to the idea, completely given into the idea कि world is going to end and there is no hope, no optimism for the future. कोई उम्मीद नहीं है फ्यूचर में वर्ल्ड को सर्वाइव करने की. In the next question, we have to evaluate the line. Some say the world will end in fire, some say in ice. Evaluate the line मतलब हमें इस लाइन को पूरी तरह से जज करना है, देखना है कि ये कितनी इसमें सच्चाई है, क्या ये पॉसिबल है. और उन्होंने कॉन्टेक्स्ट भी दिया हुआ है कि फायर एंड आइस कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, वोल्केनिक इरप्शंस, फॉरेस्ट फायर्स, मीटियोर कोलिजन्स, मेल्टिंग आइस कैप्स और इस तरह के इवेंट्स के ऊपर. तो एक तरफ तो हमारे को इमेज ऑफ फायर को हम एसोसिएट कर ही रहे हैं विद वॉल्केनिक इरप्शंस एंड फॉरेस्ट फायर, और ये नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं विच हैव द पोटेंशियल, विच हैव द उनके अंदर पॉसिबिलिटी होता है टू कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन. दे आर थ्रेटनिंग ह्यूमन लाइफ. आपको पता है वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो कितने मीलों तक वो लावा बहकर जाता है, एंड इट इज सो हॉट दैट इट मेल्ट्स एवरीथिंग. फॉरेस्ट फायर्स भी आपको पता है कितनी कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स होती हैं, व्हाट डिस्ट्रक्शन दे कॉज, राइट. मतलब जो ये वॉल्केनिक इरप्शंस है, इनका जो ऐश उड़ता है, ये तो इवन सन की रेस को ब्लॉक आउट कर सकता है, और ये ग्लोबल कूलिंग कॉज कर सकता है. ग्लोबल वार्मिंग का ऑपोजिट टर्म होता है ग्लोबल कूलिंग, कि टेम्परेचर जिन जगहों पे हमारे को एक एक वार्म टेम्परेचर चाहिए, वहाँ पे टेम्परेचर इतना ठंडा हो जाएगा या फिर इतना गर्म हो जाएगा कि वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा. उसी तरह से जो फॉरेस्ट फायर्स हैं वो बहुत जल्दी स्प्रेड होती हैं और बहुत लार्ज एरिया को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, बहुत लैंड प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देती हैं. तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं, दे आर they are supporting the line that the world will end in fire. दूसरी तरफ से जो इमेज ऑफ आइस के साथ हम एसोसिएट करते हैं, दैट इज द मेल्टिंग आइस कैप्स, द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग होगा तो आइस कैप्स मेल्ट होंगी. मेल्टिंग आइस कैप्स के मेल्ट होने आइस कैप्स के मेल्ट होने से क्या होगा कि जो सी लेवल्स है ये राइज होंगे. सी लेवल राइज होगा तो जो सिटीज़ हैं, जो एरियाज हैं बॉर्डरिंग द सी, उनमें फ्लड्स आ जाएंगे. लोगों को वहाँ से या तो दे विल ड्राउन और दे विल हैव टू बी डिस्प्लेस्ड. उनको वहाँ से कहीं और रीलोकेट करना पड़ेगा. फिर ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये भी हमारे वेदर पैटर्न्स को चेंज कर रही है, हमारे इकोसिस्टम को चेंज कर रही है. और जब इकोसिस्टम चेंज होता है तो इसका मतलब होता है कि ये बहुत इम्पैक्टफुल होगा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट होगा ऑन द ह्यूमन सोसाइटी and the environment. So this is how we will evaluate this line. Next question. Imagine that Nelson Mandela read Fire and Ice. As Mandela write a diary entry associating the impact of the troubled history of South Africa with the idea expressed in the poem. You may begin like this. तो ये extrapolation across the text है. आपको नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एंड फायर एंड आइस पोएम्स के अंदर कनेक्शन बताया गया है. दे हैव ऑल्सो टोल्ड यू कि ये जो डायरी एंट्री है आप कैसे लिखोगे. डायरी एंट्री जो होती है हमेशा उसमें डेट टाइम लिखना ज़रूरी होता है, एंड एट द एंड ऑफ द डायरी एंट्री यू नीड टू राइट योर नेम. मतलब ऑल्दो डायरी एंट्री इज़ एन इनफॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग, बट फिर भी इसमें ये चीज़ें लिखनी होती हैं, बट द वे यू राइट इट, यू कैन राइट समथिंग ऑन द राइट हैंड साइड, समथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आपकी फ्रीडम है, बट लिखना होता है. सो नाउ अब इसमें हम लिखेंगे क्या, हम इन दोनों चैप्टर्स को कैसे को रिलेट करेंगे.
सो वी विल टॉक अबाउट द ट्रबल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड की हिस्ट्री क्या है? वर्ल्ड वॉर वन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू के पोएम ये 1920 में लिखी गई थी। और अफ्रीका की हिस्ट्री क्या है? that again it was being ruled over by the white men। apartheid system उसमें था। तो उन जो ब्लैक मैन थे उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। दे वर वेरी क्रूअली ट्रीटेड। नाउ अब ये अंडरस्टैंडिंग के साथ हम डायरी एंट्री लिखेंगे नेल्सन मंडेला की तरफ से। नेल्सन मंडेला मानते हैं दैट ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। वो ये भी मानेंगे कि इस पोएम को पढ़ के मेरे लिए एक डीप रेजोनेशन हुआ। रेजोनेशन का मतलब कनेक्शन बना, बिकॉज मेरी कंट्री का भी एक ट्रबल्ड हिस्ट्री रहा है। ये ट्रबल्ड हिस्ट्री क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ अगेन द टू फायरी इमोशंस, फायर एंड आइस। फायर एंड आइस में किस तरह से हम कनेक्ट करेंगे कि जो फ्लेम्स ऑफ हेट थी, एंगर थी, रिजेंटमेंट थी ऑफ द वाइट मैन अगेंस्ट द ब्लैक, दे वर द कॉज ऑफ एपेटाइट, राइट? इसके कारण इंटेंस पेन एंड सफरिंग, मिलियंस ऑफ पीपल इन साउथ अफ्रीका वेंट थ्रू दिस पेन। ऑन द अदर हैंड ऐसे लोग थे जो हेट्रेड नहीं दिखा रहे थे, जो एंगर नहीं दिखा रहे थे, बट दे वर शोइंग आइसी इमोशंस ऑफ इनडिफरेंस, एपैथी। वो उन्होंने इनजस्टिस होते हुए देखा और अपनी आंखें बंद कर ली कि हमें क्या हो रहा है तो होता रहे। तो मतलब अब दोनों टेक्स्ट को हमने कोरिलेट कर दिया, द हॉट एंड द कोल्ड इमोशंस विद व्हाट वाज हैपनिंग इन अफ्रीका। तो अब वो उसके बाद कहते हैं कि जैसे पोएम में दोनों अपोजिंग फोर्सेस हैं, तो साउथ अफ्रीका ने भी इसी चीज़ को एक्सपीरियंस किया है इन देयर जर्नी टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। फायरी पैशन और करेज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द एंटी अपार्टेड मूवमेंट। और इसी फायरी इमोशंस ने फ्यूल किया था फॉर द फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी। अगर ये फायरी इमोशंस साउथ अफ्रीकन ब्लैक मेन के अंदर नहीं होते, then they could not have launched such an important struggle against the system. They would not have fought against the system. Again, there was cool determination and perseverance of those who worked hard behind the scenes. Determination, cool determination, बड़ी शांति से उन्होंने अपना प्लान आउट किया। उनके साथ जितनी भी ज्यादतियाँ हुई, जितना भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उसको बड़े हिम्मत के साथ बर्दाश्त किया, परसिवर किया, कंटिन्यूसली अपने कंट्री के फ्रीडम के लिए वर्क किया। तो अगेन जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके भी हॉट एंड कोल्ड इमोशंस को उन्होंने डिस्क्राइब किया है, that how they helped in the fight for freedom. Their hot and emotions kept the flame burning, and it allowed them to make a peaceful transition to democracy instead of being ruled under apartheid. उनका जो ये डिटर्मिनेशन था, ये जो लॉ थी, जो फ्लेम था, उसने बड़ी आराम से, बड़ी शांति से ये ट्रांजिशन करने दिया टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। फिर वो लास्ट में बोलेंगे कि जैसे मैं अब कंटिन्यू करूँगा अपनी नेशन को लीड करने के लिए, तो आई एम रिमाइंडेड ऑफ बैलेंसिंग दीज टू अपोजिंग फोर्सेस। फायर एंड आइस को मुझे बैलेंस करके चलना है, so that there is no more destructive flames of hatred and division in the country, and he has to maintain the cool-headedness and perseverance to which is necessary। हेट्रेड को ओवरकम करने के लिए जो उनको हिम्मत चाहिए, जो सहनशीलता चाहिए, वो सब चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। So this is how on behalf of Nelson Mandela you will be writing the diary entry. Okay, next question. Most of your classmates like Frost feel that man's greed and rage or hate would lead the world to its destruction. आपके क्लास में डिस्कशन हुआ होगा और अब सारे बच्चे इस बात से एग्री करते हैं कि यस, मैन का जो ग्रीड है, मैन का जो गुस्सा है, मैन की जो नफरत है, वो वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा। You feel that fire and ice in mankind can be addressed to create a harmonious world.
बट आपको ऐसे लगता है कि अगर हम फायर एंड आइस के इमोशंस को एड्रेस करें, उनको लोगों को बताएं कि हमारे अंदर ये इमोशंस हैं जो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अगर लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए तो हो सकता है वो ये इमोशंस को छोड़ के एक हारमोनियस वर्ल्ड का मतलब होता है अ वर्ल्ड लिविंग इन हार्मनी, अ वर्ल्ड लिविंग इन यूनिटी, जहाँ पे एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने की बजाय हम इकट्ठे ग्रोथ की बातें करें। तो इस पॉइंट पे यू नीड टू राइट अ स्पीच फॉर योर क्लासमेट्स इन विच यू विल एक्सप्रेस योर बिलीव्स विद रिस्पेक्ट टू द पोएम। तो इसमें अब आपको इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स मैंने दे दिए हैं। फर्स्ट, आप स्पीच का फॉर्मेट फॉलो करते हुए हर एक को ग्रीट करोगे, फिर आप बताओगे कि मैन जो है, इंसान जो है, ही इज़ अ ब्लेंड ऑफ बोथ द गुड एंड द बैड, और हमारा काम क्या है, वी नीड टू एनकरेज द गुड, हमें गुडनेस को बाहर निकालना है, और जो हमारे अंदर बैड वाइब्स हैं उनको कंट्रोल करना है, उनको ओवरकम करना है। जब इंसानों को पता चलेगा व्हाट आर द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हिज ओन थिंकिंग, हम कितना बुरा सोचते हैं, तो हो सकता है दे विल स्टार्ट वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, वो इंसानियत के लिए काम करें, और एक बंदा भी काम करेगा, देन द वेव ऑफ पॉजिटिविटी विल स्प्रेड, ईच पर्सन विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द गुडनेस ऑफ दैट वन पर्सन, एंड दस ये जो पॉजिटिविटी का वेव है ये 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से आगे आगे बनता जाएगा। अगर हम सीड्स ऑफ चेंज के ऊपर फोकस करेंगे तो लोग भी उससे एनकरेज होंगे टू इंटरैक्ट विदाउट एंगर, विदाउट हेट और मैलिस। मैलिस का मतलब होता है स्पाइट, जेलेसी की भावना, रिवेंज की भावना। अगर सब एक दूसरे की तरफ पॉजिटिव होंगे तो नेगेटिव इमोशंस ऑफ एंगर, हेट एंड मैलिस वो एलिमिनेट हो जाएंगे हमारे लाइफस्टाइल से, हमारे थॉट प्रोसेस से, और हम एक दूसरे के साथ प्यार से बात करेंगे। अगर किसी को भी एंगर का सामना नहीं करना पड़ेगा, नो वन विल हैव टू फेस एंगर, हेट और मैलिस, तो वो भी कंपेल्ड होगा अपने एटीट्यूड को बदलने के लिए, टू चेंज हिज एटीट्यूड। और ये बात हमें याद रखनी है, लास्ट में इस बात पे फोकस करना है कि जो चेंज आता है सबसे पहले हम में आना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस हम चेंज होंगे तब तक हम दुनिया से चेंज की उम्मीद नहीं कर सकते। फर्स्ट चेंज मस्ट बिगिन विद द सेल्फ, एंड यू विल एंड योर स्पीच विद अ थैंक यू। Next question is, what message does the poet wish to convey through the poem Fire and Ice? तो बड़ा सिंपल सा मैसेज है कि वर्ल्ड का एंड 2 चीज़ों से होगा, दैट इज़ फायर एंड आइस। वो बिलीव करता है दैट द मोस्ट, उनके हिसाब से मोर चांसेस ऑफ द वर्ल्ड एंडिंग विल बी थ्रू फायर, बट वो बोलते हैं कि अगर वर्ल्ड ने सेकेंड टाइम एंड होना हुआ, देन आइस इज़ ऑल्सो अ ह्यूज पॉसिबिलिटी। सो दिस इज़ द मैसेज। वो सिर्फ हमें क्या करना चाहिए वो मैसेज नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ हमें कॉशन कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं कि वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा with our emotions, with our negative emotions of fire and ice. Next question, what do fire and ice symbolize in the poem? ये already मैंने initially revision में discuss किया था. Fire stands for conflict, fury, intolerance, right? Insensitivity, while ice stands for greed, avarice, lust, rigidity, coldness, indifference, hatred, etc. मतलब फायर जो है वो फायरी इमोशंस, एंगर, आपके अंदर बर्दाश्त ना हो, आप लोगों के लिए सेंसिटिव ना हो, इस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। और आइस कोल्ड इमोशंस जैसे ग्रीड, अवेरिस, एवरिस का मतलब होता है आपके अंदर बुराइयाँ, आपके अंदर लस्ट है, आप रिजिड हो, अपने व्यूज़ को चेंज नहीं करते हो, आप लोगों की तकलीफ के प्रति कोल्ड हो, इनडिफरेंट हो, आप लोगों से नफरत करते हो। तो दीज आर द सिंबॉलिक मीनिंग्स ऑफ फायर एंड आइस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ये हॉब्सन्स चॉइस जो है ये बहुत कॉमन टर्म नहीं है। Anyways, the question is, it is a Hobson's choice that the poet faces in the poem Fire and Ice. Illustrate this thought with the help of examples from the poem. Hobson's choice का मतलब होता है there is a choice of taking what is available or nothing at all.
आपको जो दिया गया है, सामने जो परोसा गया है, उसी में से चूज करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू द हॉब्सन चॉइस, लेट अस डिस्कस द पोएम। तो पोएट के हिसाब से वो कह रहा है कि द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर। फायर सिंबलाइजेस द ग्रीड एंड ह्यूमैनिटी। दूसरी तरफ से हो सकता है द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, एंड आइस सिंबलाइजेस हेट, राइट। तो ह्यूमैनिटी के पास अब क्या चॉइस है? इनफैक्ट उनके पास क्या कोई चॉइस है? उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड का एंड तो होने ही वाला है, वो तो कंफर्म्ड है। इट इज डिस्ट्रक्शन इन बोथ द केसेस, सो व्हाट चॉइस डू वी हैव? हम बोल सकते हैं कि ठीक है, नहीं, वर्ल्ड को फायर में एंड होने दो, क्या या ये हम कह सकते हैं कि ओके, लेट द वर्ल्ड एंड इन आइस? नो, बिकॉज द वर्ल्ड एंडिंग इज आवर ओन डिस्ट्रक्शन। इट इज एक्चुअली नो चॉइस, राइट। सो यहाँ पे चॉइसेस आर इलस्ट्रेटेड ऑन अ पर्सनल लेवल, क्योंकि ये दोनों ही हमारे को अफेक्ट करती हैं। ये इंडिविजुअल डिस्ट्रक्शन इक्वली कॉज करेंगी, तो कोई चॉइस ही नहीं है। इट्स द पोएट इज यूजिंग अ टाइट एंड क्लिप्ड मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग द चॉइसेस टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज मैसेज दैट देयर इज नो अल्टरनेटिव। हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। पोएट ने इतना टाइट मैसेज दिया है कि वर्ल्ड का तो डिस्ट्रक्शन होना ही है, चाहे फायर से हो चाहे आइस से हो। जो थीम ऑफ द पोएम है, दैट इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड through greed, hatred, avarice, and thus it is illustrating the proverb Hobson's choice. It gives the poem a profound and meaningful undercurrent. ये जो हॉब्सन चॉइस है, ये एक पोएम को बड़ा ही प्रोफाउंड और मीनिंगफुल अंडरकरंट टोन देता है, जहाँ से हमें पता चलता है कि दिस इज द लास्ट, द एंड ऑफ द वर्ल्ड, अगर हमने खुद को चेंज नहीं किया। The next question is, the use of symbolism in the poem Fire and Ice conveys the poet's message effectively. Expand with reference to the poem. ऑलरेडी हमने इसको डिफरेंटली डिस्कस कर लिया है। पोएम हमें बता रहा है कि वर्ल्ड कैसे एंड करेगा। फायर इज स्टैंडिंग फॉर ग्रीड, लस्ट, ह्यूमन डिजायर, एंड आइस इज स्टैंडिंग फॉर हेट्रेड, कोल्डनेस, ह्यूमन इनडिफरेंस। और ये सिंबॉलिज्म इनफ है बताने के लिए कि वर्ल्ड चाहे ग्रीड से एंड करे, चाहे वो इनडिफरेंस से एंड करे, बट द वर्ल्ड विल एंड विद द नेगेटिव इमोशंस ऑफ मैनकाइंड। We will now discuss extract based questions, and the extract given is, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. तो अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक विद वन वर्ड। सिर्फ एक वर्ड के साथ आपने ब्लैंक फिल इन करना है। एंड द क्वेश्चन इज, when the speaker says that ice could also bring about the end of the world, he refers to dash as the means of destruction. अब आइस के साथ हमारे कौन से इमोशंस हैं? हेट्रेड भी है, इनडिफरेंस भी है, बिटरनेस भी है, एपैथी भी है, डिटैचमेंट भी है, रिजिडिटी भी है। इन 6 वर्ड्स में से आप कोई भी वन वर्ड चूज कर सकते हो, which is correlating to the meaning of the word ice and which will bring about destruction. Second question from the same extract, what does the speaker's alignment with those who favor ice suggest? तो स्पीकर का alignment with those who favor ice suggests that they have seen the destructive consequences of lack of empathy. जब इंसानों में lack of empathy होता है, lack of understanding होता है, lack of emotional connection होता है, तो ये humanity के लिए बड़ा destructive है। So आप इस तरह से आंसर करोगे। The third question from the same extract, which of the following best describe the speaker's attitude towards destruction caused by ice? Is it indifferent? Is it fearful? Is it dismissive? Or is it respectful? आंसर मैंने दिया हुआ है डी, रिस्पेक्टफुल। यहाँ पर अब हमें अंडरस्टैंड करना है कि इनडिफरेंट, फियरफुल और डिसमिसिव क्यों नहीं है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो स्पीकर है, जो पोएट है, वो एक्नॉलेज कर रहा है दैट आइस हैज ग्रेट डिस्ट्रक्टिव फायर, क्योंकि वो बोलता है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। वो मानता है कि आइस की जो बहुत डिस्ट्रक्शन पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है। जब वो ग्रेट वर्ड को यूज़ करता है तो ये इम्प्लाई करता है अ सेंस ऑफ ओ और रिस्पेक्ट। हमें पता चलता है वो डिस्ट्रक्शन को
ग्रेट को कितना ज़्यादा वर्ड रिस्पेक्टेड है, एंड इट इज़ रिस्पेक्ट फॉर व्हाट, फॉर द पावर ऑफ आइस टू कॉज डिस्ट्रक्शन। इनडिफरेंट होता तो वो ये पोएम हमारे को कॉशन करने के लिए कहता ही नहीं। फ़ियरफुल होता तो उसके इमोशंस हमें नज़र आते, यहाँ पे हमें पोएट के कोई इमोशंस नहीं नज़र आ रहे। अगेन ही इज़ नॉट डिसमिसिव ऑफ द फैक्ट दैट द वर्ल्ड विल एंड। वो हमें कॉशन कर रहा है, वो इस टॉपिक को, इस मैसेज को, इस थॉट को डिसमिस नहीं कर रहा। The fourth question from the extract is comment on the poet's use of language in these lines. ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि लैंग्वेज बड़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड हैं, और जो पोएम लिखी गई है इट इज़ रिटन इन अ कन्वर्जेशनल टोन। इसकी सिंप्लिसिटी के बावजूद इसका एक बड़ा प्रोफाउंड मैसेज है अबाउट द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ बोथ फायर एंड आइस, एंड it is also talking that destruction is inevitable, destruction तो होगा ही होगा, but simple language use करने से ये जो message है ये wider audience तक पहुंच रहा है, और पोएम का जो overall impact है वो बहुत great बन जाता है। Okay, next question is how are ice and fire similar to each other though they have contradictory traits? आइस एंड फायर में क्या सिमिलैरिटी है जबकि उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके जो ट्रेट्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। तो उनमें सिमिलैरिटी क्या है, दैट दे वुड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, दे वुड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को ख़त्म कर देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है द मैसेज ऑफ द पोएम। फायर एंड आइस की टोटालिटी में आप एट द एंड किस लाइन के साथ कंक्लूड करोगे, तो यहाँ पे जो मैसेज है वो क्रिस्टल क्लियर है। पोएट हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि वर्ल्ड में कुछ भी इटर्नल नहीं है, जो भी कुछ वर्ल्ड में है वो एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाएगा, whether it ends through fire or through ice. So with this I come to the end of my video. I hope कि आपको ये बेनिफिशियल होगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते बड़े सिंपल हैं, सिर्फ हमें क्वेश्चन समझने की ज़रूरत होती है। आपने नोटिस किया होगा कि ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन द थीम। कॉम्पिटेंसी में अगर आपको थीम पता है तो आप सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो, सिर्फ वर्डिंग्स डिफरेंट होते हैं, बेसिकली आंसर वही रहता है। इफ़ यू आर फेस्ड विद अ कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा है, देन माई एडवाइजेस आप थीम लिख दो, थीम के साथ क्वेश्चन को कोरिलेट कर दो, एंड हो सकता है आपको 3 मार्क्स ना मिलें बट आपको 2-2.5 तो ज़रूर मिल जाएंगे। अगर अच्छी लगी हो वीडियो देन प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, students, teachers, colleagues, so that maximum children can benefit from it. And if you have not subscribed, please do subscribe to the channel. It greatly encourages me, motivates me. Thank you everyone for giving me your hour. I'm really grateful. Happy revision to all of you.